Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Artificial Intelligence, we started our Unit 1. So Unit 1 is based on Introduction to AI and Search Technique, where we already discuss about what is meant by Artificial Intelligence, the agents क्या होते हैं, what types of agents, examples of agents also. Okay, the second part of the Artificial Intelligence is the search technique. Okay. So in this video we are going to discuss about the search strategies in artificial intelligence and how the searching will work in artificial intelligence, what is mean by state space search with example, that is the 8 puzzle problem example. So let us discuss here. First is a search strategies. Okay. So before starting the search strategies, first we discuss about what is mean by searching. Okay. So what is searching here? In general finding a solution. Okay. जो भी हम सर्च कर रहे हैं सो वो क्या करता है, सॉल्यूशन को फाइंड करेगा. कोई भी सर्च अगर हम करते हैं तो जनरली फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन अ वेबसाइट, फाइंडिंग द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन. अगर वेबसाइट के ऊपर हम कोई भी सर्च करते हैं सो वो क्या करेगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर शो करेगा. इन अ सिटी फाइंडिंग द करेक्ट पाथ. ओके, अगर मुझे ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक मुझे रीच करना है, ये डेस्टिनेशन तक रीच करना है, सो डिफरेंट पाथ होंगे. यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, रूट यहाँ से यहाँ तक हो सकता है. सो मैं क्या करूँगी, ये वाले पाथ से सर्च करूँगी, ये वाले पाथ से सर्च करूँगी और ये वाले पाथ से सर्च करूँगी. ओके. सो इन अ सिटी फाइंडिंग द करेक्ट पाथ, ये एक सर्चिंग टेक्निक हो सकती है. इन चेस फाइंडिंग द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप टू मूव ऑन. ओके, एंड मेनी मूव. सो बेसिकली search is the process of considering the various possible sequences of operators applied to the initial state and finding out the sequences which culminates in the goal state. Okay, so this is the part of a search. So same in the artificial intelligence के ऊपर भी हम सर्च टेक्निक को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे वो इंटेलिजेंस के थ्रू सर्च करेगा थिंग्स को. ओके, तो सी हियर, based on the search problems we can classify the search algorithms into the uninformed search and the informed search. Okay, so uninformed search को हम blind search भी बोल सकते हैं. Okay, and informed search is also called as a heuristic search algorithm. So the first type of search strategy is the uninformed or a blind search. So it is also called as a blind search or the blind control strategy. It is named so because there is a information only about the problem definition. Okay, it will provide the information about only the problem definition and no other extra information is available about the state. Okay, जो भी मुझे सर्च करना है सो वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट स्टेट होंगी. तो वो क्या करेगा, जो भी पॉसिबल स्टेट से उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो सर्च करेगा. ओके, सो in the uninformed search there are different types. First is the breadth first search, depth first search and the iterative deepening depth first search. Okay, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यूज़ करती हूँ, अगर उसको कोई भी डेटा को सर्च करना है तो यहाँ पे हम अनइन्फॉर्म सर्च मीन्स ब्लाइंड सर्च को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि जो भी उसको प्रॉब्लम दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, सर्च करेगा. ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स. ब्रेथ फर्स्ट सर्च के हम उसको सर्च कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च से हम सर्च कर सकते हैं और इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च से हम उसको सर्च कर सकते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज अ इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम. द इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम इज अ मोर यूजफुल फॉर द लार्ज सर्च स्पेस. इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम यूजेस द आइडिया ऑफ heuristic, which is also called as a heuristic search. So informed search is also called as a heuristic search. So in the heuristic, it is a way which might not always be guaranteed for the best solution, but guaranteed to find the good solution. Okay, सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, हर एक स्टेट को सर्च करेगा यूजिंग BFS, DFS और IDDFS.
ओके। सो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, हमें सॉल्यूशन देगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग द ह्यूरिस्टिक सर्च, सो ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करेगा, गारंटी नहीं देगा कि हमने जो सर्च किया है वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है, इसकी वो गारंटी नहीं देगा। बट वो गारंटी किसकी देगा कि वो होगा हमारा गुड सॉल्यूशन। ओके, मीन्स जितने भी हमारे पास रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज है वो उसके कंपैरिजन में वो गुड सॉल्यूशन है। ओके, इन द रीजनेबल टाइम पीरियड। ओके, उस जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या है, गुड सॉल्यूशन है। बट वो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है वो हमें नहीं बताएगा इन द ह्यूरिस्टिक सर्च। Okay, before starting the uninformed blind search, first we discuss about how this searching works. Okay, so search problem is represented using the directed graph. Okay, अगर हम uninformed search को use करते हैं तो वो directed graph से represent करेंगे, where we have the states that are represented as a node. Okay, so these are the states represented as a nodes. And the allowed actions are represented as a arcs. जो भी हमने actions perform किए हैं उसको हमने क्या किया है, arrow से denote किया है। Okay, so this is whole circle is called as a state space. These are the different states which is represented as a nodes. So I am considering here this is the initial state. These are the different actions and the goal state. तो ये जो हमारी इनिशियल स्टेट है इसको हमें क्या करना है, गोल स्टेट तक रीच करना है। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ये नोड सो ये नोड से यहाँ तक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्शंस। कहाँ तक हमें एक्शन परफॉर्म करनी है, जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिलता तब तक हमें एक्शन परफॉर्म करनी है। ओके, सो दिस सर्चिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ अनइन्फॉर्म्ड सर्च प्रोसेस, बिकॉज इन द अनइन्फॉर्म्ड सर्च प्रोसेस वी आर सर्च फॉर द प्रॉब्लम डेफिनेशन। हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होगा, हमें क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट दी है और हमें क्या करना है, रीच करना है गोल स्टेट तक। वहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट एक्शंस होंगे फॉर द अवेलेबल स्टेट। जितने भी अवेलेबल स्टेट्स है उसके अंदर ही हमें क्या करना है, सर्च करना है। ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस सर्चिंग। So in the generic search process can be very simply describing in the term of following step. So कैसे हमें सर्च करना पड़ेगा, डू अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड और द स्टेट स्पेस इज एग्जॉस्टेड। ओके, कब तक हमें सर्च करना है, चेक द करंट स्टेट हमें पहले चेक करनी है, एग्जीक्यूट द अलाउएबल एक्शन टू फाइंड द सक्सेसर स्टेट। जब तक कि हमें नेक्स्ट वाला स्टेट नहीं मिलता तब तक हमें क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। पिक वन ऑफ द न्यू स्टेट, इसमें से मैंने क्या किया, ये न्यू स्टेट कंसिडर किया। चेक इफ द न्यू स्टेट इज सॉल्यूशन स्टेट। ओके, ये अगर न्यू स्टेट हमारा गोल स्टेट है तो हम स्टॉप करेंगे। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो ये हमारा गोल स्टेट है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये नोड से दूसरे नोड तक उसको चेक करूँगी जब तक कि मुझे इनिशियल से गोल स्टेट नहीं मिलता तब तक। ओके, इफ इट इज नॉट द न्यू स्टेट बिकम्स द करंट स्टेट। ओके, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करती हूँ तो ये मेरा गोल स्टेट है क्या, नहीं है। तो जो भी हमारा करंट स्टेट है उसको मैं क्या करूँगी, न्यू स्टेट को मैं करंट स्टेट मार्क करूँगी एंड वहाँ से मैं नेक्स्ट प्रोसेस रिपीट करूँगी जब तक कि मुझे गोल स्टेट नहीं मिलता। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस फॉर सर्चिंग द गोल स्टेट। सो इलिस्ट्रेशन ऑफ द सर्च प्रोसेस। ओके, सो सी हियर, so S0 is the initial state, the successor states are the adjacent state in the graph and there are 3 goal state. Okay, so there are 3 goal state. So यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इनिशियल स्टेट, ये वाला रूट चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी चेक कर सकते हैं। So for the 2 successor state of the initial states are generated. तो ये जो इनिशियल स्टेट है वहाँ से मैंने 2 सक्सेसर नोड जनरेट किए। ओके, देन सो उसमें से मैंने कौन सा चूज किया है, ये वाला मैंने चूज किया है। सो उसके बाद द सक्सेसर ऑफ दिस स्टेट्स आर पिक्ड एंड देयर सक्सेसर्स आर जनरेटेड। तो ये जो मैंने पिक किया था उसके मैंने 2 सक्सेसर नोड जनरेट किए, ये वाला एक और ये वाला एक। ओके,
सो अकॉर्डिंग टू दिस देन इसमें से अगर मैंने ये वाला चूज़ किया है तो उसमें से मैंने ये वाला एक चूज़ किया एंड देन ये वाला एक चूज़ किया। ये दोनों में से अगर मैंने ये वाला चूज़ किया है तो इसका सक्सेसर नोड्स ये हो सकता है एंड ये हो सकता है। अगर मैंने ये वाला चूज़ किया है तो इसके सक्सेसर नोड्स क्या हो सकते हैं, ये एक सक्सेसर नोड हो सकता है एंड ये एक सक्सेसर नोड हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, गोल स्टेट। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे दो सक्सेसर चूज़ किए तो ये भी मैं चूज़ कर सकती थी, इसको मैं देन ये वाला होगा देन ये वाला। ओके, सो लाइक दिस मुझे क्या करना है, जो भी हमारा इनिशियल स्टेट है उसके दो सक्सेसर, उसमें से एक करंट स्टेट मार्क करेंगे देन उसके दो सक्सेसर्स। सो इस तरह से हम सर्च प्रोसेस को एक्सपांड कर सकते हैं to find out the goal state. Clear? Any doubt up to this? Yes or no? No ma'am, no doubt. Okay, so this is the search process. In by state space search, it is the process used in the field of computer science, including the artificial intelligence, in which the successive configuration or states of an instances are considered with the goal of finding the goal state with the desired property. So in the state space search, there are different components are used or the representation is used. The first is the states, operators which is also called as the action, goal test and the path cost. Okay, ये सारे कंसेप्ट कंपोनेंट को हमें यूज करना है स्टेट स्पेस के अंदर. So state means what? The state is a description of each of the 8 tiles in each location that it can occupy. Okay, so state space का एक एग्जाम्पल है 8 पजल प्रॉब्लम. ओके, so 8 पजल प्रॉब्लम से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो ये वहाँ पे हमारे पास कितने टाइल्स होंगे, 8 टाइल्स हो सकते हैं. ओके, 8 पजल प्रॉब्लम्स के अंदर अगर मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कि हमारे पास टोटल 8 टाइल्स है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट. सो ओके, इस तरह से. सो दिस इज अ 8 पजल प्रॉब्लम. सो वहाँ पे हमारे पास 8 टाइल्स होंगे, उसमें से एक वाला जो होगा वो क्या होगा, ब्लैंक होगा. ओके, सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो 8 एंड 1 वाला क्या होगा, ब्लैंक होगा. सो स्टेट इज अ डिस्क्राइब ऑफ ईच ऑफ द 8 टाइल्स इन ईच लोकेशन दैट इट कैन ऑक्यूपाई. सो हम ऑक्यूपाई कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं. ये वाले प्लेस में हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. देन ऑपरेटर्स और एक्शन क्या है, द ब्लैंक मूव्स. ब्लैंक मूव्स कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है, ब्लैंक मूव्स है. इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में. ओके, सॉरी लेफ्ट साइड एंड अप साइड में. ओके, यहाँ पे अगर ब्लैंक मूव्स है सो उसको लेफ्ट एंड अप में मूव कर सकते हैं. अगर सेंटर में अगर मेरा ब्लैक मूव होगा तो उसको मैं अप मूव कर सकती हूँ, डाउन में भी मूव कर सकती हूँ, राइट में भी मूव कर सकती हूँ एंड लेफ्ट में भी मूव कर सकती हूँ. सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्शंस और ऑपरेटर्स ऑन द स्टेट्स. देन गोल टेस्ट क्या होगी, द करंट स्टेट मैचेस सर्टन स्टेट. ओके, सो एग्जाम्पल वन ऑफ द मूव शोज एंड प्रीवियस स्लाइड. सो दिस इज अ गोल टेस्ट. इसमें से कोई भी गोल टेस्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. पाथ कॉस्ट, ईच मूव ऑन द ब्लैंक कॉस्ट इज अ 1. कोई भी अगर ब्लैंक को अगर मैं मूव करती हूँ अप साइड में सो उसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, 1. अगर सेकेंड टाइम मूव करती हूँ तो उसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, 1 + 1 2, देन 1 + 2 3. ओके,
तो इस तरह से हम पाथ कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, so see here there is a one example related to the state space problem, that is the 8 puzzle problem. So the 8 tile puzzle problem formulation. The 8 tile puzzle consists of the 3 by 3 square frame board which holds the 8 movable tiles numbered 1 to 8. Okay, so this is a 3 by 3 representation, 3 by 3 matrix representation where we have numbered tile number is a 1 to 8 and one square is a empty, one square is a empty, so allowing the adjacent tiles to be shifted. So the objective of the puzzle is to find the sequence of tiles movements that leads from the starting configuration to the goal configuration. So यहाँ पे देखो ये हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम मीन्स इनिशियल स्टेट, एंड हमें क्या करना है, इसको इस तरह से गोल स्टेट में मूव करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे लाना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, देन 3. ओके, सो मुझे क्या करना है, ये जो एम्प्टी प्लेस है इसको क्या करना है, अपवर्ड मूव करना है, राइट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में, सो दैट वी कैन गेट द गोल स्टेट. So the state of the 8 tile puzzles are the different permutation of the tiles within the frame. Okay, so यहाँ पे multiple possibilities हो सकती है. अगर मुझे ये इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में अगर रीच करना है, तो वहाँ पे multiple possibilities हो सकती है. ओके, सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताया था, सेम 8 पजल प्रॉब्लम के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, स्टेट्स क्या है, इट specifies the location of each of the 8 tiles and the blank in the one of the 9 squares. Initial state क्या होगी, any state can be designed as the initial state. Okay, so this is the initial state and the goal, many goal configurations are possible, one such shown in the figure. Okay, so see here in this example, so this is our initial state and हमें गोल स्टेट अगर मेंशन की है, इस टाइप की अगर मुझे गोल स्टेट मेंशन की है, तो उसको रीच करने से पहले मुझे मेनी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी. यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, देन थर्ड पॉसिबिलिटी, इसके अंदर भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, 1 के अंदर भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, 2 के अंदर डिफरेंट. ओके, सो इस तरह से मुझे गोल पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है. मूव्स कैसे होंगे, इसके लीगल स्टेट मूव्स कैसे होंगे, दे जनरेट द लीगल स्टेट्स दैट result from trying the 4 actions. Okay, so blank moves लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं उसको, देन राइट साइड में मूव कर सकते हैं, अप साइड में मूव कर सकते हैं एंड डाउन साइड में मूव कर सकते हैं. सो दीज आर दी मूव्स फॉर द ब्लैंक स्टेट. पाथ कॉस्ट is step cost 1, so the path cost is the number of steps in the path. So path cost क्यों लगेगी हमें, so see here initial state, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारा ब्लैंक, ये वाली जो ब्लैंक स्पेस है, इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में मूव किया. सो 5 मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे. तो इसकी पाथ कॉस्ट क्या होगी, 1. अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया. सो यहाँ पे होगा 4, सो यहाँ पे होगा 1, सो यहाँ पे अगेन 1. सो हर टाइम मैं पाथ कॉस्ट फाइंड आउट करूँगी. सो ये अगर इस तरह से अगर मैंने इसको शिफ्टिंग की है, तो मुझे पाथ कॉस्ट अगर मिलती है यहाँ पे 10. ओके, सो इस तरह से मैंने अगर शिफ्टिंग की है, सो यहाँ पे अगर मुझे पाथ कॉस्ट मिलती है 12. इस तरह से मैंने अगर शिफ्टिंग की है, अगर मुझे यहाँ पे पाथ कॉस्ट मिलती है 9. सो जिसका मिनिमम शिफ्टिंग होगी वो हमारा फाइनल स्टेट होगा. ओके, फाइनल सॉल्यूशन होगा. तो इसके लिए हम पाथ कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं. या फिर अनदर केस क्या हो सकती है, हमारे पास ऑलरेडी इनिशियल स्टेट है एंड गोल स्टेट भी गिवन है. सो गोल स्टेट अगर मेरी ये वाली गोल स्टेट है, सो ये गोल स्टेट मुझे किससे मिली है, सो देखो यहाँ पे मैंने 4, सो ये मैंने जो यूज़ किया है 4, इसको मैंने शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक. ओके, 1 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. ओके, सो 1 यहाँ पे होगा. ठीक है, देन अगेन शिफ्टिंग करने के बाद मुझे 1 यहाँ पे मिलेगा. मीन्स इस तरह से इनिशियल स्टेट टू मुझे गोल स्टेट अगर रीच करना है, ये इनिशियल स्टेट एंड ये गोल स्टेट होनी चाहिए मेरी. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पाथ कॉस्ट को मीन्स इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. ओके, मीन्स ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाली, इसको ही मैं क्या करूँगी, रीयूज़ करूँगी. रिमेनिंग को हमें यूज़ नहीं करूँगी अगर मेरे पास ऑलरेडी गोल स्टेट गिवन है तो.
तो सी हियर, ये हमारे पास एक पजल प्रॉब्लम है। ये बीच वाली हमारी ब्लैंक स्टेट है। इसको अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हूँ, देन लेफ्ट में मूव किया, देन डाउन में एंड देन राइट में। सो अगेन अगर मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है तो इसकी पॉसिबिलिटीज एक तो लेफ्ट राइट हो सकते हैं एंड डाउनवर्ड्स हो सकते हैं, ओके, अपवर्ड नहीं हो सकते। अगर ये वाली कंडीशन मैंने यूज़ की तो ये क्या कहाँ पे मूव हो सकता है, अपवर्ड, ओके सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ही मूव कर सकते हैं, ओके, लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं, राइट साइड में मूव कर सकते हैं, डाउन में नहीं मूव कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको चेक किया है, ओके, सेंटर में ऑलरेडी हमने इसको यूज़ किया है, तो ओनली लेफ्ट एंड राइट कंडीशन वो चेक करेगा, ओके। सो देन लेफ्ट साइड में अगर आता है तो वो क्या कौन सी चेक करेगा कंडीशन, ओनली अप साइड एंड डाउन साइड चेक करेगा, क्योंकि राइट साइड वो चेक नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक किया है। अगर डाउनवर्ड्स आता है तो वो कौन सी चेक करेगा, लेफ्ट एंड राइट, एंड ये जो राइट है इसका वो कौन सा चेक करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ओके। सो अगेन यहाँ पे ये वाला अगर मैं चेक करती हूँ तो ये कौन सी कंडीशन चेक करेगा, ओनली लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड एंड डाउन साइड, ओके, ये वाले कंडीशन के लिए। अगर ये राइट में है तो ये क्या करेगा, ओनली लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड, ओके। सो लाइक दिस, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।